بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی، تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا، مگر تو میرے رسول اور میرے مذہب کا دشمن تھا۔ خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد نے ایاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا۔ پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حدرجان اور الہیم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بیتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں رستہ دے دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے گونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے
किले वालों ने दरवाज़ा खोल दिया। ईसाई और बुत परस्त भाग कर दरवाजे में दाखिल होने लगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे उनके साथ चिपके हुए थे। इस तरह सूरत ये पैदा हो गई थी कि दुश्मन का एक आदमी अंदर जाता तो दो मुसलमान उसके साथ अंदर चले जाते। ईसाइयों और बुत परस्तों का शेराजा बिखर चुका था। मुसलमान किले में दाखिल हो गए थे। अब जो कुछ हो रहा था वो लड़ाई नहीं थी, वो ईसाइयों और बुत परस्तों का कत्ले आम था। खालिद चाहते थे कि कत्ले आम का ये सिलसिला जारी रहे। ये अगस्त सन 633 के आखिरी और जमातुल आखिर 12 हिजरे के वस्त के दिन थे। खालिद ने जोधी बिन रबैया और उसके तमाम साथी सालारों और सरदारों को सजाए मौत दे दी थी। दोमतुल जिंदल मुसलमानों के ज़ेरे निगरानी आ गया। इस्लाम दुश्मन ताकतें ख़त्म होने में नहीं आती थीं। ईरान के आतिश परस्तों को जिस तरह इस्लाम के अलमबरदारों ने शिकस्त पे शिकस्त दी और जितना जानी नुकसान उन्हें पहुंचाया था उतना कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ आतिश परस्त नहीं थे, तमाम गैर मुस्लिम कबीले जिनमें अक्सरियत अरबी ईसाइयों की थी उनके साथ थे। आतिश परस्तों ने अब उन कबीलों को आगे करना शुरू कर दिया था, जैसा मेहरान बिन बहराम ने ऐनुल तिमर में किया था। आतिश परस्तों के सालार मैदान जंग से भाग भाग कर मदाइन में इकट्ठे होते जा रहे थे। उनके नामवर सालार बहमन जाजोया ने जब मेहरान बिन बहराम को अपनी फौज के साथ वापस आते देखा तो उसे इतना सदमा हुआ था कि उस पर खामोशी तारी हो गई थी। मेहरान ने उसे कहा था, मत घबरा बहमन, दिल छोटा ना कर, आखिर फतह हमारी होगी। मैं शिकस्त खा कर नहीं आया, शिकस्त बुद्वी कबीलों को हुई है। सालार बहमन जाजोया ने कहा था, और तू लड़े बगैर वापस आ गया है। तू इतना बड़ा शहर अपने दुश्मन की झोली में डाल आया है। तू खुशकिस्मत है कि तुझे यहाँ सजा देने वाला कोई नहीं। सजा देने वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो जानिशीनी पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। मेहरान ने तंजिया लहजे में कहा, बहमन क्या तू मेरी सरजनिश कर रहा है? क्या तू मुसलमानों से शिकस्त खाने वालों में से नहीं? अगर तू मैदान में जम जाता तो आज मदीना वाले यूं हमारे सर पर ना आ बैठते। शिकस्तों की इब्तिदा तुझसे हुई है। मेरी तारीफ कर के मैं अपने लश्कर को बचा कर ले आया हूँ। मैं इसी लश्कर से मुसलमानों को शिकस्त दूंगा। मदाइन में इस वक्त जो लश्कर जमा हो चुका है उसे हम एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार करेंगे। उस वक्त मदाइन में फारिस के जितने भी नामवर सालार थे वो सब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शिकस्त खा कर आए थे। उन्होंने इसे जाती मसला बना लिया था, वरना वहाँ हुक्म देने वाला कोई ना था। हुक्म देने वाले शाही खानदान के अफराद थे जो तख्त की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फारिस की शहनशाहत के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फर्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मदाइन का भरम रखा हुआ था, वरना किसरा की बुनियादें हिल चुकी थी और ये इमारत जमीन बोस होना ही चाहती थी। उस वक्त खालिद मदाइन से कम व बेश 400 मील दूर दोमतुल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को अभी मालूम ना था। वो समझते थे कि खालिद ऐनुल तिमर में है। खालिद को दरअसल हीरा वापस आना था। एक तो वो मफ्तूहा इलाकों के इंतजामात वगैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, दूसरा ये कि फौज को कुछ आराम देना था, और तीसरा काम ये था कि फौज को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मैदान जंग में दुश्मन के आमने सामने आकर लड़ते थे, दूसरे मुजाहिदीन वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धार कर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो जासूस थे, वो हर लम्हा जान के खतरे में रहते थे।
वो दुश्मन की नक्लो हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इतला भिजवाते या खुद इतला लेकर आते थे। तारीख में उनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। 2-4 से दुनिया वाकिफ है और गुमनाम न जाने कितने हैं। उनमें बास पकड़ लिए गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हुए। उन जासूसों की बरवक्त इतलाओं पर खालिद कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद जब दोमतुल जिंदल में थे तो मफ्तूहा इलाकों के लिए एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मदाइन पर किसरा की शिकस्त और जवाल की सियाह काली घटाएं छाई हुई थीं। लोगों पर खौफ और हिरास तारी था। किसरा की उस तलवार पर जंग लग चुका था जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो उस डूबती कश्ती को तूफान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। उन हालात में एक घोड़ा मदाइन में दाखिल हुआ और बहमन जाज़ोया तक पहुंचा। बहमन ने पूछा, अब और क्या बुरी खबर रह गई थी जो तू लाया है? कहाँ से आया है तू? क्या मुसलमानों का लश्कर मदाइन की तरफ आ रहा है? उस आदमी ने कहा, नहीं, मुसलमानों का लश्कर चला गया है। बहमन जाज़ोया ने तंजिया लहजे में पूछा, चला गया है? तू उन लश्करियों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमानों की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है। क्या तू नहीं जानता तेरे जुर्म की सजा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। उसकी इतला पर बहमन जाज़ोया बाहर आ गया था। उसने इस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का नाम सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन जाज़ोया के कदमों में बैठ गया और घबराई हुई मुतलज्जी आवाज में कहा, मैं ऐनुल तिमर से आया हूँ। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन उनमें से भी हूँ जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन ले जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये ना भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बहमन ने कहा, बोल जल्दी बोल, क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़ोया की एक बेटी जो जवान थी एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब से उसका बाप शिकस्त खा कर आया है वो गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि उसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करेगा। ऐनुल तिमर से आए हुए आदमी ने कहा, खालिद इराक से चला गया है, मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशेर बिन कैस ने भेजा है, आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद ने ऐनुल तिमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को अमाल मुकर्रर कर दिया है। उसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सलूक मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस मौके की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमानों की फौज अचानक ऐनुल तिमर से निकल गई। बहमन जाज़ोया ने कहा, जरतश की कसम, खालिद उन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या उसकी सारी फौज हमारे इलाके से निकल गई है? मैं पूरी खबर लाया हूँ सालार। ऐनुल तिमर, हीरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फौज रह गई है और एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दोमतुल जिंदल चला गया है, जहां उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशेर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा
भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त अपने मफतूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवाल व जवाब के बाद बहमन जाज़ोया को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया है। बहमन को मालूम था कि दोमतुल जिंदल कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। बहमन जाज़ोया ने उस आदमी से कहा, तुम वापस चले जाओ और शमशेर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। बहमन की बेटी ने ऐनुल तिमर के सवार के जाने के बाद बहमन से पूछा, क्या हो गया है मोहतरम बाप, मुसलमान कहाँ चले गए हैं? बहमन ने बेटी को फरते मुसर्रत से गले लगा लिया और पुरजोश और पुरअज़म आवाज में बोला, ओ मेरी प्यारी बेटी, मुसलमान वही चले गए हैं जहाँ से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुँचने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा, कब? मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम बाप। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़ोया ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन जाज़ोया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महल्लात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया। फिर मदाइन की हजीमत खुर्दा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन जाज़ोया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। खालिद की लाश तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द-ए-अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई मार नहीं सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइंसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में जरा सा भी नुक्स या कमजोरी देखें तो उसे ठीक करें या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़ोया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी, जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई। वहां उसके बाप के घोड़ों के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। उसने अपने खानदान के साइज से कहा, मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना। एक उधेड़ उमर साइज जो 3-4 महीने पहले उस अस्तबल में आया था दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है या मदीना के लश्कर के हमले का खतरा है। लड़की ने कहा, अब तुम मदीना वालों की लाशें देखोगे। बाकी कोड़ों के साइज भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज्यादा फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका इराक का था जो खालिद ने फारिस वालों से छीना था। लड़की ने साइंसों को बताया कि अब अपनी फौज पहले ऐनुल तिमर पर फिर दूसरे शहरों पर हमला करके उन्हें दोबारा अपने कब्जे में ले लेगी। अगर खालिद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उधेड़ उमर साइस ने मसरूर से लहजे में पूछा, क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा? बहमन की
کی بیٹی نے کہا زندہ یا مردہ؟ اسے مدائن لایا جائے گا، اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنس مکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مثنی بن حارث کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا تھا۔